سبین کا سسرال بائے راشدہ رفت۔ برسوں پہلے سسرال کا خوف سبین کے دل و دماغ میں بیٹھ چکا تھا۔ آپی اور بچوں کی شادی بھرے پورے سسرالوں میں ہوئی تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی 2-4 دن میکے گزارنے آتی تو کپڑے لتوں کے بیگ کے علاوہ ایک نادیدہ گٹھڑی سسرال والوں کی برائیوں کی بھی ہوتی۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے انہیں سسرال والوں کی دل دکھانے والی باتیں یاد آتی رہتی اور وہ ماں سے دکھڑے روتی رہتی۔ امی ٹھنڈا سانس بھر کر بیٹیوں کو صبر کی تلقین کرتی۔ میرے بچے، سسرال پھولوں کی سیج کا نہیں بلکہ کانٹوں سے بھرے بستر کا نام ہے۔ کانٹوں سے الجھنے سے گریز میں ہی عافیت ہے، ورنہ اپنا دامن ہی تار تار ہوتا ہے۔ امی سامع آپی کو سمجھاتی، پاس بیٹھ کر اخبار پڑھتے۔ ابو اینک کے شیشوں کے اوپر سے امی کو جھانکتے۔ زبان دانی کے اس مظاہرے پر ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی۔ عارفہ بجو کی پھاپے کٹنی ساس اور تیز ترار نندوں کی تیزی تراری کے قصے سن کر امی انہیں بھی کچھ اسی قسم کی نصیحتیں کرتی۔ برے سسرال میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے آنکھیں اور کان کھلے اور زبان بند رکھنی پڑتی ہے۔ عارفہ، صبر سے کچھ برس گزار لو، آنے والا وقت تمہارا ہی ہوگا۔ وہ بیٹی کو پیار سے سمجھاتی، تمہاری امی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بیٹے، ماضی میں اس گھر میں بھی تخت و تاج کے پیچھے بہت برائیاں ہوئی ہیں۔ تمہاری امی نے صبر، حوصلے اور ثابت قدمی سے کام لیا۔ اب دیکھ لو، تخت تاج کے ساتھ ساتھ سر تاج بھی تمہاری امی کی مٹھی میں ہے۔ تمہیں بھی صبر اور حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی بڑی باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، ان پر کوڑنے کے بجائے نظر انداز کر دیا کرو۔ ابو بھی بیٹی کو محبت بھرے انداز میں سمجھاتے، کہنا آسان ہے ابو جی، اور کرنا مشکل۔ آخر انسان کب تک اور کتنا برداشت کرے؟ عارفہ بچوں کی آواز بھر آ جاتی۔ سبین بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ عارفہ بچوں نے بچپن میں اس کے بہت لاڈ اٹھائے تھے۔ اسے بھی بچوں سے بہت محبت تھی۔ اپنی پیاری بچوں کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ جاتا۔ وہ کتنی کمزور ہو گئی تھی، بھرے پورے کنبے میں بڑی بہو بن کر گئی تھی۔ وہاں کولہوں کے بیل کی طرح جتی رہتی، پھر بھی ساس نندوں کی کڑوی کو سیلی باتیں سننے کو ملتی۔ سبین گھٹتے ہوئے سوچتی کہ سسرال والوں کو بہو کے ساتھ ہر طرح کے ناروا سلوک کا گویا لائسنس ملا ہوتا ہے۔ بہو بیچاری کو تو بس صبر اور برداشت سے کام لینا ہوتا ہے۔ سبین نے کالج میں قدم رکھا تو سہیلیوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی خواتین کے ڈائجسٹ پڑھنے لگی۔ ہر ڈائجسٹ میں 2-4 کہانیاں تو ضرور ہی سسرال والوں کے ظلم و ستم پر مبنی ہوتی۔ سسرال نامی بلا کا خوف جو پہلے ہی دل و دماغ میں پنجے گاڑے بیٹھا تھا، مزید بڑھ گیا۔ 2-4 برس مزید گزرے، وہ کالج سے یونیورسٹی میں آ گئی۔ ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق اب باقاعدہ لت بن چکا تھا۔ اب ان رسالوں میں کہانیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے سلسلے بھی شامل تھے جن میں شادی شدہ عورتیں اپنی شادی کے بعد کی زندگی کے تجربات قارئین سے شیئر کرتیں۔ 99% عورتوں کے تجربات بھیانک ہوتے کیونکہ انہیں خوفناک ترین سسرالیوں سے نمٹنا پڑتا تھا۔ یہ داستانیں پڑھ کر سبین کو جھرجھری آ جاتی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد امی ابو نے اس کے لیے بر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بڑی دونوں بہنوں کے رشتے جتنی آسانی سے مل گئے تھے، سبین کی باری میں جانے کیوں ڈھنگ کا رشتہ ڈھونڈنا اتنا مشکل ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ بڑی دونوں بہنوں سے زیادہ خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، لیکن اس کے لیے کوئی معقول رشتہ نہ مل رہا تھا۔ اس تاخیر پر سبین دل ہی دل میں شکر مناتی تھی، لیکن جس طرح بکرے کی ماں طویل عرصے تک خیر نہیں منا سکتی تھی اور اسے چری تلے آنا ہی پڑتا ہے، اسی طرح سبین کی آزادی کے دن تمام ہوئے۔ عارفہ بچوں نے اپنی چھوٹی لاڈلی بہن کے لیے اپنے سسرالی رشتہ داروں میں سے ایک عدد رشتہ دریافت کر لیا تھا۔ شہریار ان کے چچا سسر کا بیٹا تھا، برسر روزگار، تعلیم یافتہ اور ظاہری طور پر بھی خاصا ہینڈسم تھا۔ شہریار کے گھر والوں نے پہلی بار آمد پر ہی سبین کو سند قبولیت بخش دی۔ امی تو خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھیں کہ اتنی اچھی جگہ سبین کا رشتہ طے پا گیا۔ سبین کا حیرت اور صدمے سے برا حال تھا۔ عارفہ بجو کے نک چڑھے سسرال والوں کی داستانیں سنتے سنتے اتنے برس بیت چکے تھے اور اب بچوں نے اس کے لیے بھی اسی سسرال میں سے رشتہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ ارے میری جان، سسرال کا دم چلا تو ہر رشتے کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ شہریار بہت اچھا لڑکا ہے، ایسے رشتے تو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ بجائے شکر کرنے کے تم منہ بسور کر بیٹھ گئی، سامیہ آپی نے اسے پیار بھرے لہجے میں سمجھایا تھا۔ اتنے میں عارفہ بجو بھی ادھر آ نکلی۔ یہ کیوں منہ بنا کر بیٹھی ہے؟ انہوں نے سامیہ آپی سے پوچھا۔ کہتی ہے شہریار کا تعلق بجو کے سسرال سے ہے، سامیہ آپی نے مسکرا کر بتایا۔
हाँ, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? देखे भाले लोग हैं, उनकी कोई चीज़ हमसे छुपी नहीं और शहरयार भी हमारी आंखों के सामने जवान हुआ है। सुलझी हुई आदत और इतवार का मालिक है और हमें क्या चाहिए पगली? उन्होंने भी प्यार से बहन को समझाया और पगली की मोटी-मोटी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। आपके ससुराल वाले कितने तेज तर्रार लोग हैं बच्चों और आप कह रही हैं कि मैं उनमें उनमें रिश्ता जुड़ने पर शुक्र मनाऊं? अरे छोड़ो, अब ऐसे भी तेज तरार नहीं। और अजनबी अनजान लोगों में रिश्ता जुड़ जाए तो क्या गारंटी है कि वो तेज तरार नहीं निकलेंगे? बजोर इंसानियत भरे लहजे में बोली और उसका ध्यान तो पहले फिक्रे में ही अटक गया। क्या कह रही हैं बच्चों, वो इतने भी तेज तरार नहीं। आप भूल गई, आपकी शादी के बाद आपके ससुराल वालों ने आपको कितना टफ टाइम दिया था। उसने उन्हें याद दिलाया। बज्जो मुस्कुरा दी। मेरी जान, जब मैं भी कम उम्र और नादान थी, छोटी-छोटी बातों पर पैरों कुड़ती थी, फिर बड़ी बहू बनकर गई तो ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत थीं। आहिस्ता-आहिस्ता जब इस घर में और बहुएँ आईं तो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती चली गईं। ससुराल वाले भी बहुओं के साथ एडजस्ट होना सीख गए। मेरे तो सोने-जागने, खाने-पीने, ग़र्ज़ हर चीज़ पर उनकी कड़ी नज़र थी। मैं और तुम्हारे दूल्हा भाई इकट्ठे बैठकर खाना ना खा सकते थे और अब मेरे छोटे देवर अपनी बीवियों के साथ मजे से होटलिंग करते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। फिर तुम कौन सा मेरे ससुराल में शादी होकर जा रही हो? यासीन चचा मेरे ससुर के भाई हैं और उनके घर का माहौल हमारे घर से खासा मुख्तलिफ है। ना ही तुम बड़ी बहू बनकर जा रही हो। बड़ी बहू के जितने चाव चौंचले उठाए जाते हैं, उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का भार भी उतना होता है, जबकि बाद की बहुओं के ना तो ज्यादा चाव चौंचले उठाए जाते जाते हैं, ना ही वो हर वक्त ससुराल वालों की कड़ी निगाहों की जद में रहती हैं। बड़ी जिठानियों की मौजूदगी में घर के तौर तरीके सीखने के लिए गाइडलाइन भी मिलती है। कोई भी काम करने के लिए खुद से दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता। जैसे बड़ी बहुएं बहुएं कर रही हैं, आप भी वैसा तर्ज अमल अपना लें। एडजस्ट होने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। आरफा बजो ने उसे लंबा चौड़ा लेक्चर ही दे डाला था। और हमारी सबीन तो बहुत समझदार है, ये अपनी समझदारी से काम लेकर ससुराल में बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाएगी। सामिया आपी ने छोटी बहन को मोहब्बत से देखा। सबीन गहरी सांस खींच कर रह गई। शादी बखैरो हुबी अंजाम पाई और बिलाहिर सबीन ने ससुराल में कदम रंबा फरमा लिया था। वहां हड़बूम का अजीब ही आलम था। किसी को दुल्हन के इस्तकबाल के लिए निछावर किए जाने वाली फूलों की पत्तियां नहीं मिल रही थी। कोई चौखट पर डालने के लिए तेल की शीशी ढूंढ रहा था। उसकी छोटी ननद समरा भाई का रास्ता रोके नेक का मुतालबा कर रही थी। बस बहुत हो गया, दुल्हन को अंदर तो आने दो, फिर करते रहना रस्में वगैरह। ये दबंग आवाज उसकी सुसर मोहतरम की थी। फौरन हुक्म की तामील हुई और उसे अंदर आने का रास्ता दिया गया। सबीन ने सुकून का सांस लिया। थकन से बुरा हाल था। भारी भरकम शरारा, जेवरात का बोझ, शर्म से झुकी गर्दन और हाई हील का जूता। उससे खड़ा होना मुहाल हो रहा था। ससुर की मुदाखलत पर उसे हॉल कमरे में जाकर सोफे पर बिठा दिया गया। अब रस्मों की कवरेज के लिए मूवी मेकर का इंतजार था, जो शादी के फंक्शन की मूवी बनाकर साथ ही वापस आया था। 15 मिनट इंतजार का कहकर वो गेट से ही वापस पलटा था और अब तक वापस ना लौटा था। सबीन सर झुकाए सोफे पर बैठी थी। समरा ने उसे कोल्ड ड्रिंक का गिलास ला थमाया था। उसने 2 घूंट भरकर गिलास वापस कर दिया। हॉल कमरा रिश्तेदार खवातीन से भरा हुआ था। सब थके हारे थे। कारपेट पर कोई नीम दराज था तो कोई कुशन्स के सहारे बैठा था। छोटे बच्चों की रें रें भी जारी थी, लेकिन सब बातों में मशगूल थे। और सुनाओ फाहरा बहन, तुम्हारी ननद की बेटी रूबी रूबी वापस ससुराल गई या अभी तक मैके बैठी है? एक खातून ने दूसरी को मुहातिब किया। अरे नहीं जाती भई, जिद की पक्की है। कहती है मेरे साथ धोखा हुआ है और उस धोखे में घर वाले भी बराबर के शरीक हैं। अब तो घर बैठकर घर वालों के सीनों पर ही मूंग दलूंगी। खातून जिनका नाम फाहरा था, उन्होंने ठट्ठा लगाते हुए दूसरी खातून को जवाब दिया। अरे हाय, कैसा धोखा भई, हाँ कुछ हमें भी तो पता चले। किसी बारीक सी आवाज वाली आंटी ने पूछा। बस शाहिदा, क्या पूछती हो? बच्ची को शादी से पहले कह दिया, तुम्हारा दुल्हा बिल्कुल फवाद जैसा जैसा है। बेचारी को तस्वीर दिखाई नहीं। शादी के बाद जब उसने दुल्हा देखा तो गश्क आ गई। कहने लगी, मैं तो फवाद खान जैसा बंदा सोचे बैठी थी, ये तो फवाद चौधरी जैसा शख्स निकल आया। फाहरा आंटी ने कहका लगाते हुए बताया था। सभी हंस पड़े थे। सबीर ने भी बहुत मुश्किल से मुस्कुराहट जब्त की। और कुछ पता चला इकराम भाई के साथ कैसा हाथ हुआ? एक और खातून ने भी हंसते हुए दूसरा मौजू छेड़ा। अरे इकराम के साथ कौन हाथ कर सकता है? एक नंबर का कंजूस और काइया शख्स है, फिर भला को होशियार। उसके साथ किसने क्या कर दिया? सबीन की सास रुखसाना ने अचंभे से पूछा।
کیا بتاؤں رخسانہ بھابھی، اکلوتی بیٹی کی شادی کی لیکن جہیز دینے میں بخل سے کام لیا۔ بچی نے ضد کی کہ فریج تو لازمی لے کر جاؤں گی، تو فریج پسند کروانے داماد کو اپنے ساتھ الیکٹرانکس کی دکان پر لے گئے۔ سوچا تھا ٹی وی کے اشتہار کی طرح داماد صاحب مسکراتے ہوئے فرمائیں گے میرے گھر کی چیز کے پیسے آپ کیوں دیں، لیکن ہوا یہ کہ داماد نے فریج کے ساتھ اے سی اور 56 انچ کی LED کی فرمائش بھی کر دی۔ خاتون نے لطف لیتے ہوئے بتایا کمرے میں ایک اور کہکہ گونجا۔ سبین خاموشی سے اپنے سسرالی رشتہ داروں کی گفتگو سننے پر مجبور تھی۔ سب اپنی گپ شپ میں مشغول تھے۔ انہیں نئی نویلی تھکی ہاری دلہن سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ آخر یہ مووی والا کب آئے گا؟ رسمیں ہو جائیں تو سبین کو اس کے بیڈ روم میں پہنچاتے ہیں۔ آخر اس کی بڑی جٹھانی نزہت کو ہی خیال آیا۔ مووی بنوا بنوا کر پیٹ نہیں بھرا تم لوگوں کا؟ جب سے شادی کی تقریبات شروع ہوئی ہیں تمہاری موویاں ہی بن رہی ہیں۔ جو رسم کرنی ہے کرو اور پھر سونے کا بندوبست کرو۔ کل ولیمے کا فنکشن ہے، صبح سے اس کی مصروفیت شروع ہو جائے گی۔ چند گھنٹوں کا تو آرام کرنے دو۔ گھر میں عجیب سی ہڑبونگ مچی ہوئی ہے، سکون کا ایک پل میسر نہیں۔ یہ غسیلی سی آواز سبین کے سسر کی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں یاسین بھائی، اتنی رات ہو گئی ہے، جلدی سے رسمیں نمٹاؤ اور سونے کا انتظام کرو۔ بھابھی جان بتائیں مجھے آج بستر کیسے لگاؤں؟ کل تو شاکرہ مومانی اور ان کی بچیاں سبین کے بیڈ پر سو گئی تھیں، آج کیسے سونا ہے؟ شہریار کی چھوٹی پھپھو بھاوج سے استفسار کر رہی تھی۔ سبین جی ہی جی میں کلس کر رہ گئی، یعنی کہ کل اس کے نئے بیڈ پر مہمان خواتین کو سلایا گیا تھا۔ ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی نفاست پسند طبیعت پر یہ بات بہت گراں گزری تھی، لیکن کلسنے کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ مووی نہیں بن رہی تو رسمیں کرنے کا فائدہ؟ میں تو پھر سونے جا رہی ہوں، اس کی چھوٹی ننند سمرا نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ اے بیٹی، نئی نویلی دلہن کے بھی تو کچھ ارمان ہیں۔ یاسین بھائی سے ہی کہہ رہے تھے، تمہیں تو بس اپنی مووی سے غرض ہے۔ ایک رشتہ دار بزرگ خاتون نے سمرا کو ٹوکا۔ سبین کے بس میں ہوتا تو وہ اس خاتون کی غلط فہمی دور کر دیتی۔ ان فضول سی رسموں کے حوالے سے اس کے دل میں کوئی ارمان نہ تھا۔ وہ تو جلد از جلد اپنے بیڈ روم میں جانا چاہ رہی تھی۔ اس جھمگٹے سے اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ نزہت، فرحین کہاں ہو بھئی؟ تم فٹافٹ رسمیں نمٹاؤ اور دلہن کو اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ اس کی ساس نے دونوں بڑی بہوؤں کو پکارا۔ یہ شادی تو بہت تھکا دینے والا کام ہے یار، میری توبہ جو میں آئندہ کوئی شادی کروں۔ شہریار نے بیڈ روم میں پہنچ کر دوستانہ سے انداز میں اس سے پہلی بات یہ کی تھی۔ سبین کے لبوں پر حیا آلود مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایک رات کی رفاقت میں ہی وہ جان گئی تھی کہ اس کے والدین نے اس کے لیے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے۔ جیون ساتھی کے حوالے سے جو خدشات اور واہمے دل میں پنپ رہے تھے وہ آپ ہی آپ دم توڑ گئے۔ ولیمے کے فنکشن میں جب ماں بہنیں بےتابی سے سبین سے ملی تو سبین کی مطمئن اور مسرور مسکراہٹ دیکھ کر ان کے دل بھی شانت ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ مہمان گھر سے رخصت ہوئے۔ سب سے آخر میں سبین کے بڑے جیٹھ اور جٹھانی واپس ہوئے تھے۔ اویس بھائی فوج میں تھے، آج کل ان کی پوسٹنگ پشاور میں تھی۔ ان کی بیگم نزہت اچھے مزاج کی تھیں۔ ان 4-5 دنوں میں انہوں نے سبین کا ہر ممکن خیال رکھا تھا۔ ان کے بچے بھی تمیزدار اور سلجھے ہوئے تھے۔ اویس بھائی سے چھوٹے نبیل بھائی تھے۔ ان کی بیوی فرحین کا نام تو سبین سے ملتا جلتا ہی تھا، لیکن ابھی تک سبین کو ان کے مزاج کا ٹھیک سے اندازہ نہ ہو سکا تھا۔ کاموں کی زیادتی کی وجہ سے جھنجھلائی ہوئی پھرتی رہتی۔ ان کے اوپر تلے کے 2 بیٹے تھے، 4 سالہ شاہ میر اور 2.5 سالہ شاہ زر۔ دونوں بچے بلا کے شرارتی تھے۔ جب بھی سبین کے کمرے میں گھستے ڈریسنگ ٹیبل پر سجے سامان کو تہس نہس کر دیتے۔ سبین صبر کے گھونٹ بھرنے کے سوا کچھ نہ کر سکتی۔ نبیل بھائی سے چھوٹی آصفہ باجی، اس کی بڑی ننند، فیملی سمیت ملائیشیا میں بستی تھیں اور باوجود شدید خواہش کے شہریار کی شادی میں پاکستان نہ آ سکی تھیں۔ آصفہ کے بعد شہریار کا نمبر تھا، پھر سمرا تھی جو 3rd ایئر کی طالبہ تھی۔ سب سے چھوٹا عاذر FSC کر رہا تھا۔ وہ پڑھاکو سا لڑکا تھا جس کی زندگی کا واحد مقصد میڈیکل کا میرٹ بنانا تھا۔ بارات اور ولیمے کا فنکشن بھی اس نے مارے بندھے بھگتایا تھا، ورنہ وہ کتابوں سمیت اپنے دوستوں کے پاس کمبائنڈ اسٹڈی کرنے چلا جاتا اور رات کو سب کے سونے کے بعد گھر لوٹتا تھا۔ رخسانہ آنٹی، اس کی ساس محترمہ، جنہیں وہ جٹھانیوں کی دیکھا دیکھی امی کہنے لگی تھی، بھاری بھرکم خاتون تھیں۔ اپنے بے تحاشا بڑے ہوئے وزن کی وجہ سے ان کا چلنا پھرنا محال تھا۔ وہ عموماً ہال کمرے کے مخصوص گوشے میں بچھے تخت پر نیم دراز رہتیں اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے زبانی احکامات جاری کرتے ہوئے گھر کا انتظام و انصرام سنبھالتی تھیں۔ یاسین انکل یعنی موجودہ ابو اس کے سسر محترم غصے کے خاصے تیز تھے۔ سبین نے عارفہ بچوں کی زبانی ان کے غصے کی داستانیں سن رکھی تھیں اور وہ شادی سے پہلے بھی ان کے غصے سے خائف ہوتی تھی، تب بچوں نے اسے تسلی دی تھی۔
घर का सरबराह जोर आवर हो तो घर की औरतें अपनी हद में रहती हैं। मिस्कीन और दब्बू ससुर हो तो सास नंदे फितनागर साबित होती हैं। मेरे ससुराल की मिसाल तुम्हारे सामने है, इसलिए यासीन चचा के गुस्से की वजह से परेशान मत हो। और उनका गुस्सा ज्यादातर अपने बीवी बच्चों पर निकलता है, बहुओं से तो लिहाज से ही बात करते हैं। आरफा बच्चों ने उसे तसल्ली दी थी और अभी तक तो उनका कहा दुरुस्त साबित हो रहा था। सबीन डरते झिझकते ससुर को सलाम करती, वो वालेकुम अस्सलाम कहकर सर पर हाथ फेर देते। कभी कभी जीती रहो भी कह देते। इससे ज्यादा ससुर ससुर बहू का कोई मुकालमा ना होता था। हाँ, अपनी बीवी और बच्चों पर वो किसी न किसी बात पर बरसते ही रहते, लेकिन शायद वो सब भी इस घिन गिरज के आदी हो चुके थे। सो सुकून से अपने मामूलात निपटाते रहते। सबीन भी आहिस्ता आहिस्ता इस अजनबी माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। ससुराल की अजनबी सरजमीन पर सिर्फ एक शख्स अपना लगने लगा था, लेकिन शहरियार के मिजाज से मुकम्मल आशनाई हासिल करने में कुछ वक्त लगना था। सबीन की ख्वाहिश और कोशिश थी कि वो जल्द अज जल्द शहरयार के दिल में जगह बनाने के साथ उसके घर में भी अपना मकाम बना ले। मेहमानों के रुखसत होते ही उसने घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। बहू, पहले खीर में हाथ डालना, फिर जो मर्जी काम करना चाहो कर लेना। रुखसाना बेगम उसे रिसानियत भरे अंदाज में टोकती। अरे अम्मी, करने देना। ये सब शुरू शुरू का शौक होता है, याद नहीं फरहीन भाभी भी अपनी शादी के फौरन बाद कैसी एफिशिएंसी झाड़ती थी। और अब घर के काम करते हुए उनके माथे के बल ही कम नहीं होते। समरा ने आहिस्ता आवाज में माँ को मुखातिब किया। दस्तरख्वान पर से बर्तन समेट कर बाहर जाती सबीन की समातों तक ये सरगोशी पहुंच गई थी। उसे समरा का लबो लहजा बिल्कुल पसंद ना आया था, लेकिन वो रुक कर उसे टोकने की मिजाज ना थी। सो चुपचाप बर्तन लिए किचन में आ गई। सिंक में पहले ही गंदे बर्तनों का ढेर जमा था। उसने पहले तो किचन का फैलावा समेटा, फिर बर्तन बर्तन धोना शुरू कर दिए। अरे, तुम क्यों बर्तन धोने लगी? शाम के बर्तन धोने की जिम्मेदारी समरा की है। इतने में ही फरहीन भाभी इधर आ निकली थी। क्या फर्क पड़ता है भाभी, बर्तन मैं धो लेती हूँ। उसने जिठानी को मुस्कुराकर मुखातिब किया। अभी तो तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सारा दिन तकरीबन फारिग ही होती हो। लेकिन जब घर की जिम्मेदारियां सर पर पड़ेंगी तो फिर अपने हिस्से का काम भुगताने के लिए जिस्म में इतनी हिम्मत नहीं बचेगी कि दूसरों के छोड़े काम भी निपटाओ। और ये समरा बहुत कामचोर और निकम्मी है, सिर्फ एक वक्त के बर्तन धोना उसकी ड्यूटी है, उसमें भी डंडी मारती है। फरहीन भाभी ने छोटी ननंद की धड़ल्ले से बुराई की। उनका ख्याल था कि जवाब में सबीन भी कुछ बोलेगी, लेकिन सबीन ने अपनी बहनों की शादीशुदा जिंदगी से बहुत से सबक सीख रखे थे। ससुराली रिश्तेदारों के साथ मोहतात तर्ज अमल अपनाना ही दानिशमंदी है, कम अज कम उस वक्त तक जब तक किसी के मिजाज से मुकम्मल आशनाई हासिल ना हो जाए। उसके बाद ही बाहमी एतमाद का रिश्ता उस्तवार हो सकता था। खैर, चलो खैर, तुम बर्तन धो ही रही हो तो साथ ही चाय का पानी भी चढ़ा लो। मैं जरा शामिर को होमवर्क करवा रही हूँ, कल उसका वीकली टेस्ट है। फरहीन भाभी जो उसे समरा के हिस्से का काम करने से रोक रही थी, अब अपने हिस्से का काम भी उसके सुपुर्द करके चलती बनी। सबीन ने घर भर की चाय बनाई थी। अगली सुबह जब नाश्ते के वक्त चाय बनाने का मौका आया तो फरहीन भाभी फ्रिज में से दूध का जग लेकर सास के पास पहुंची। जरा सा दूध बचा है अम्मी, घर भर की चाय कैसे बनाऊं? आजिर से कहकर दूध का पैकेट मंगवा दें। अरे, जब रात को दूध पत्ती के दौर चलेंगे तो सुबह के लिए दूध कहाँ से बचेगा? कितनी बार कहा है कहवा बनाकर चाय बनाया करो, पर मेरी सुनता कौन है? रुखसाना बेगम बुड़बुड़ाना शुरू हो गई थी। मुझसे क्या कह रही हैं? रात को चाय सबीन ने बनाई थी, फरहीन भाभी ने फौरन जवाब दिया था। करीब बैठी सबीन गायब सी हो गई। उसने तो अपने मैके वाले हिसाब से रात के खाने के बाद ज्यादा दूध वाली चाय बनाई थी। शहरियार ने तो चाय पीकर बाकायदा तारीफ भी की थी। इसे कहते हैं चाय, फरहीन भाभी तो जाने कैसा जोशाना बनाकर पिला देती हैं। चाय अच्छी लगी है तो रोजाना रात की चाय मैं ही बना लिया करूंगी जनाब। उसने मुस्कुराकर शोहर को मुखातिब किया। क्या खबर थी अगली सुबह उसी चाय बनाने पर वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठी होगी। खैर रही कि रुखसाना बेगम ने उससे कुछ न कहा था। खामोशी से बटुए से पैसे निकाले और आजिर को आवाज दी थी। उस दिन के इख्तिताम पर भी बर्तन धोने के बाद चाय सबीन को ही बनानी पड़ी थी, लेकिन आज वो चाय नहीं बल्कि जोशाना से मिलती जुलती ही कोई चीज थी। शहरयार के मामू के यहाँ नए दो शादीशुदा जोड़े के एजाज में ज़ियाफ़त थी। उन्होंने सब घर वालों को मदऊ किया था। आज कोई अच्छा सा जोड़ा पहन लेना दुल्हन, ये जो हमारी भाभी हैं, ऐसी चीज़ों को बहुत नोट करती हैं, अच्छा सा तैयार हो जाना। रुखसाना बेगम ने उसे खास ताकीद की थी। सबीन ने अपने जहेज का सबसे महंगा और स्टाइलिश जोड़ा निकाला था। महंगी बुटीक से लिया गया नफीस काम वाला आसमानी रंग का ये सूट उसकी सहेलियों ने देखा तो बेतहाशा तारीफ की थी। सबीन ने अपनी दानिश में आज की दावत के लिए सबसे बेहतरीन जोड़ा मुंतखब किया था। तैयार होने के बाद शहरियार ने भी वालेहाना अंदाज में सराहा था। जब वो रुखसाना बेगम के पास गई तो उन्होंने फौरन टोक दिया।
दुल्हन, मैंने तुमसे कहा भी था आज कोई भारी काम वाला अच्छा सा जोड़ा पहन लेना। तुमने ये सादा सूट पहन लिया। अच्छा तो लग रहा है भाभी का सूट। इस स्टाइलिश सा। समरा की बात से सबीन को कुछ ढारस मिली थी। उसने खामोशी से नजरें उठाकर सास को देखा। हाँ कि स्टाइलिश है। जहेज के सारे सूट इतने हल्के रंगों और हल्के काम वाले हैं। हमने जो इतनी शानदार बरी चढ़ाई तो वो तो बक्सों में बंद करने के लिए है ना। रुखसाना बेगम का मूड शदीद खराब हो चुका था। सबीन खफीफ हो गई। जाओ ये कपड़े बदल कर हमारी तरफ वाला मैरून जोड़ा पहनो और जरा लिपस्टिक भी तेज कर लो। ब्याहता और कवारी में कुछ तो फर्क होना चाहिए। उन्होंने मजीद हदायत जारी की। सबीन जी अम्मी कहकर पलट गई। बरी के सभी जोड़े उसे खास पसंद ना आए थे, लेकिन ये मैरून जोड़ा तो उसे सबसे बुरा लगा था। आज की दावत में उसे तेज मेकअप के साथ वही जोड़ा जेब तन करना पड़ा था। हाँ, अब लग रही हो ना नई नवेली दुल्हन। आइंदा किसी भी दावत पर तैयार होने से पहले कपड़ों के मुतालिक मुझसे पूछ लिया करो। रुखसाना बेगम ने ताकीद की थी। सबीन को सब्र की घूंट भरने के साथ आंसू भी पीने पड़े, लेकिन जी अम्मी कहने के सिवा उसके पास कोई चारा न था। खीर पकवाई की रस्म के बाद रुखसाना बेगम ने दोनों बहुओं में काम बांट दिए थे। एक दिन नाश्ता फरहीन भाभी बनाती तो किचन समेट कर बर्तन सबीन धोती। अगले दिन रूटीन बदल जाती। इसी तरह एक दिन दोपहर की हांडी रोटी फरहीन करती तो शाम का आटा गूंद कर सबीन रोटियां बना लेती। सालन सिर्फ दोपहर को बनता था। जब सबीन दोपहर का खाना बनाती तो शाम की रोटी बनाने की जिम्मेदारी फरहीन की होती। समरा के जिम्मे रात के खाने के बाद के बर्तन धोना थे। सफाई के लिए जुज वक्ती मुलाजमा आती थी। 3-4 दिन के बाद कपड़े धुलते, एक दफ़ा वॉशिंग मशीन पर ही लगाती तो अगली बारी सबीन की होती। ये कामों की बज़ाहिर बड़ी मुनसिफाना तकसीम थी। काम बज़ाहिर बहुत ज़्यादा भी ना थे, लेकिन सबीन को पता भी ना चलता कि कब दिन शुरू हुआ और कब ख़त्म। फरहीन भाभी अपने ज़िम्मे ज़िम्मे का काम करती थी, लेकिन उनमें नफ़ासत और सलीका मफ़कूद था। जिस दिन उन्होंने नाश्ता बनाना होता, तो किचन में हर तरफ अबतरी फैल जाती। सबीन को किचन समेटने में ही बहुत वक़्त लग जाता। अगले दिन जब सबीन नाश्ता बनाती, तो फरहीन भाभी जल्दी-जल्दी बर्तन धोकर अपने तई अपने हिस्से का काम भुगता देती। किचन समेटने की ज़िम्मेदारी अब भी सबीन के हिस्से में आती। हर दूसरे दिन दोपहर का खाना सबीन के ज़िम्मे होता, तो हर चौथे दिन कपड़ों की बारी आ जाती। मैके में उसने कभी कपड़े ना धोए थे। कपड़े धोने के लिए बरसों से एक ही मासी उनके घर आ रही थी। वो बहुत साफ-सुथरे कपड़े धोती थी। कपड़े धोने के बाद इस्त्री करना भी उसी की ज़िम्मेदारी थी और अम्मी उसे ठीक-ठाक मुआवज़ा देती थीं। यहाँ सिर्फ़ सफाई के लिए मुलाज़मत थी और वो भी मारे-बांधे सफाई करके रफू-चक्कर हो जाती। सबीन ने पहली बार कपड़ों का ढेर धोया तो उसके बाजू और कमर बुरी तरह अकड़ गए। एक बड़ी गठड़ी तो फरहीन भाभी ने ही ला थमाई थी। उनके बच्चों के बेतहाशा मैले कपड़े, शर्ट्स के कॉलर और कोहनियां मशीन से निकलने के बाद भी सबीन को ब्रश मार कर रगड़ के साफ करने पड़े तौलिए, बेडशीट्स, समरा, आजिर और रुखसाना बेगम के कपड़े धोने के अलावा नबील भाई और यासीन साहब के कॉटन के कमीज शलवार को कलफ भी लगाना पड़ता। शहरयार के कपड़े सबसे कम मैले होते। वो अपने और शहरयार के कपड़े टब में सरफ डालकर हाथ से धोती। सच तो ये था कि उसकी नफासत पसंद तबीयत को ये गवारा ही ना था कि घर भर के मैले कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े भी डाल दे। उस दिन शहरयार की छुट्टी थी। सर्फ खत्म हो गया तो सबीन ने शहरयार से ही सर्फ के पैकेट लाने को कहा। रुखसाना बेगम की तेज समातों तक उसकी आवाज पहुंच गई। अभी 10-12 दिन पहले ही महीने भर के सौदा सलफ में सर्फ आया था। इतनी जल्दी खत्म हो गया? उन्होंने हैरत से पूछा। जी अम्मी, आज आखिरी पैकेट खोला था। अभी हाथ से धुलने वाले मजीद कपड़े बाकी हैं। सर्फ खत्म हो गया है, उसने बताया। ऐसे कितने हाथ से धुलने वाले हो गए बहू? रुखसाना बेगम की हैरत खत्म होने का नाम ना ले रही थी। सबीन अपने और शहरयार के कपड़े हाथ से धोती है अम्मी। करीब बैठी फरहीन ने सास की मालूमात में इजाफा किया। सबीन ने किसी मुजरिम की तरह सर झुका लिया था। ओफो, क्या हो गया है यार? घर में एक फर्द का इजाफा हुआ है। धुलने वाले कपड़ों की तादाद भी बढ़ गई है। साबुन सर्फ तो ज्यादा लगेगा ना। तुम 2 मिनट वेट करो सबीन, मैं अभी साथ वाली दुकान से सर्फ ला देता हूँ। शहरयार उसे नरमे से मुखातिब करते हुए अपनी जगह से उठा था। सबीन सर हिलाते हुए चुपचाप पलट गई। साहबजादे की फुर्तियां देखी तुमने? सबीन की समाज से रुखसाना बेगम की आवाज टकराई। गम और गुस्से से सबीन का बुरा हाल था। उसे क्या खबर थी ससुराल में इतनी मामूली चीजों का भी ऑडिट होता है और वक्त से पहले चीज खत्म हो जाए तो उसका हिसाब देना पड़ता है। रात को उसे झिझकते हुए शहरियार से बात की थी।
आप मुझे चुपके से सर्फ के पैकेट ला दीजिएगा, मैं कमरे में छुपा कर रख लूंगी, अपने कपड़े धोते हुए अपना सर्फ इस्तेमाल कर लूंगी। शहरयार उसके मासूमाना मुतालबे पर हंस पड़ा। इतनी मामूली मामूली बातों पर परेशान मत हुआ करो सबीन। मैं कितनी बार नोट कर चुका हूँ कि अम्मी के जरा से तीखे तेवर देखकर तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। खुद को थोड़ा सा मजबूत और थोड़ा सा ढीठ बनाओ। ऐसी छोटी छोटी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो, जबकि तुम एक बात को लेकर देर तक कुढ़ती रहती हो। शहरयार ने क्या दुरुस्त तज्जिया किया था। मैं हर पल इसी कोशिश में रहती हूँ शहरयार, कि मुझसे कोई छोटी बड़ी गलती सरजद ना हो जाए, कोई काम ना बिगड़ जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है। सबीन की आवाज़ भर्रा गई थी। शादी के बाद उसने शहरयार के सामने पहला शिकवा किया था। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जान के इतना टेंस क्यों रहती हो? रिलैक्स रहा करो। अगर कोई बात होती है तो मुझसे शेयर कर लिया करो। दिल में छोटी छोटी बातें और शिकायतें जमा मत किया करो, उसने प्यार से समझाया। मेरी अम्मी कहती हैं कि शोहर के सामने उसके घर वालों की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। वो अगर बीवी की हिमायत में घर वालों से बाज पुरस करने चल पड़े तो बहुत मसले जन्म लेते हैं। सबीन ने सादगी से माँ का मकूला दोहराया था। आंटी की बात गलत नहीं, लेकिन जो शोहरों की किस्म पर भी मुनहसिर है, तो मुझे उन बेवकूफ़ मर्दों की कैटेगरी में मत खड़ा करो। मुझ पर एतबार करो। अगर मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर करने से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होता है तो ऐसा ज़रूर किया करो। ये खदशा जहन से निकाल दो कि मैं अपने घर वालों से किसी किस्म की बात पुरस करूंगा। शहरियार उसे नरमी से समझा रहा था। आप बहुत अच्छे हैं शहरयार, उसने डुबडुबाई हुई आंखों से शोहर को देखते हुए एतराफ़ किया। क्या ये आई लव यू का तर्जुमा है? वो शरारत से पूछने लगा। सबीन झेम कर हंस पड़ी थी। आरिफा बच्चों कहती थी कि घर में जेठानी की मौजूदगी आसानी पैदा करती है। आरिफा बच्चों का तजुर्बा यही कहता था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद हर लड़की का तजुर्बा यकसा हो। उसके मामले में तो जेठानी ससुराल वालों से बढ़कर टफ टाइम दे रही थी। फरहीन भाभी अपने बहुत से काम गैर महसूस तरीके से उसके जिम्मे लगा देती। रुखसाना बेगम के सामने सबीन की किसी छोटी बड़ी कोताही को हाईलाइट करने वाली भी यही फरहीन भाभी थी। सबीन को अब उनकी चालाकियों पर गुस्सा आने लगा था। पहले तो उसे कभी गौर ही ना किया था कि जिस दिन कपड़े धोने की बारी फरहीन भाभी की होती है, उस दिन उनके कमरे से निकलने वाली कपड़ों की गठरी का साइज बहुत छोटा होता है। सबीन की दफा वो कपड़े निकाल निकाल कर ढेर लगा देती। बेडशीट्स, तौलिए, हटा के कमरे के पर्दे भी उन्हें जब ही धुलवाने याद आते। सबीन शहरयार से पूछे बिना ना रह पाई। मेरी शादी से पहले फरहीन भाभी घर भर के काम कैसे निपटाती थीं? अब तो उनकी कोशिश होती है कि हर काम मेरे मेरे ज़िम्मे ही लगा दें। यार, पहले हमारी बहुत भरोसे वाली मुलाज़मा काम करती थी। माँ बेटी आती थीं और कितने ही काम निपटा देती थीं। फिर बेटी की शादी हो गई। मासी सुगरा ने बुढ़ापे और बीमारी की वजह से काम छोड़ दिया। उनके बाद कोई ढंग की मुलाज़मा ही ना मिली। 1-2 मासियों को तो चोरी के शुबे में निकालना भी पड़ा। बस फिर अम्मी ने फैसला किया कि मासी सिर्फ़ सफाई के लिए रखेंगे। हमारी शादी से पहले तक 2-2 मासियाँ आती थीं। फरहीन भाभी पर काम का इतना बर्डन तब भी नहीं था। शहरयार ने तफ़सीली जवाब दिया। खैर, तुम फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे मसले का भी कोई ना कोई हल निकाल लूँगा, उसने उसे तसल्ली दी। आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे लगे कि मैंने आपके सामने कोई दुखड़ा रोया है। सबीन को फ़िक्र दामन गिर हुई। नहीं करूँगा बाबा, क्यों क्यों परेशान होती हो? शहरयार हँस पड़ा था। अगली दफ़ा जब फ़रहीन भाभी की कपड़े धोने की बारी आई तो उन्होंने सबीन से धुलने वाले कपड़े माँगे थे। इत्तेफ़ाक से इस वक़्त शहरयार भी वहाँ मौजूद था। हमारे कपड़े भाभी धोएंगी? हद हो गई सबीन, अपने काम तो खुद किया करो। उसने हल्के से सबीन को मुखातिब किया। एक दफा मशीन सबीन लगाती है, एक दफा फरहीन, मैंने दोनों में काम बांटा है। रुखसाना बेगम बोल उठी थी। नहीं अम्मी, ये मुनासिब मालूम नहीं होता। अब मेरी शादी हो गई है, अब भी मेरे मोजे और बुनियान फरहीन भाभी को धोने पड़े। शादी से पहले की बात और थी। अब मेरे कामों की तमाम तर जिम्मेदारी सबीन पर आयद होती है और उसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना आनी चाहिए। मैं ना सुनूं सबीन कि आइंदा तुमने मेरे कपड़े भाभी से धुलवाए, बल्कि अम्मी अब्बू के कपड़े भी तुम ही धोया करो। वो सख्त गिर शोहर का रूप धारे कतई अंदाज में सबीन से मुखातिब था। सबीन ने सवालिया निगाहों से सास को देखा। ठीक ही कह रहा है शहरयार, तुम दोनों अपने अपने कपड़े खुद धो। अपने हमारे कपड़े कभी फरहीन धो लेगी, वरना तुम्हें मौका मिले तो तुम धो लेना। जब बेटा ही बीवी से धौंस भरे लहजे में बात कर रहा था तो रुखसाना बेगम को काहे का इख्तलाफ करती। उन्होंने भी शहरयार की बात से इत्तफाक कर लिया। सबीन ने फरमाबरदारी से जी अम्मी कहते हुए गर्दन हिला दी थी। वो किचन में आटा गूंद रही थी जब आजिर ने किचन में झांका। भाभी, अगर जहमत ना हो तो 2 कप चाय बना देंगी? मेरा दोस्त आया है, उसने सबीन को मुखातिब किया।
कैसी ज़हमत आज़िज़, मैं अभी बना देती हूँ, उसने खुशदिली से जवाब दिया। अपने इस कमगो और शर्मीले देवर से सबीन को खासी हमदर्दी थी। वो बहुत सुलझा हुआ बीबा सा लड़का था, ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता। उसके बावजूद घर का सौदा सलफ लाना उसी की ज़िम्मेदारी थी। अक्सर तो यूँ होता कि वो एक दफ़ा चीज़ें लेकर घर लौटता तो घर वालों को कोई दूसरी चीज़ याद आ जाती। बिला चूँ-चुरां किए वो फिर से बाज़ार का रुख करता, हालाँकि उसके इम्तिहानात सर पर थे। फिर भी घर का कोई फ़र्द उसे रियायत ना देता, उसे बाज़ार दौड़ाते ही रहते। शायद इसीलिए वो अपने दोस्त के यहाँ जाकर कंबाइंड स्टडी करने को तरजीह देता। आज उसका वही दोस्त किसी काम से उसके घर चला आया था। भाभी, अगर मुमकिन हो तो चाय के साथ बिस्किट, निम्को जैसी कोई चीज़ रख दीजिएगा। असफन अपने घर मेरी भी बहुत खातिर करता है। उसने झिझकते हुए मज़ीद फ़रमाइश की। ठीक है आज़िम, मैं बंदोबस्त करती हूँ। तुम 10-12 मिनट बाद आकर ट्रे ले जाना। उसने मुस्कुराकर उससे मुखातिब किया। वो ममनून होकर वापस पलटा। सबीर ने आटा गूंद लिया था। हाथ धोकर फटाफट चाय चाय चढ़ाई, फिर फ्रिज का जायजा लिया। कल रात के खाने में पुलाव के साथ शामी कबाब तले गए थे, जिनमें से 4 शामी कबाब अभी भी बचे हुए थे। उसने ओवन में कबाब गर्म करके प्लेट में रखे। फ्रिज में से एक मिठाई का डब्बा भी बरामद हुआ। मिठाई के 2-4 पीस ही बचे थे। उसने छोटी प्लेट में वो भी सजा दिए। निम्को का जार खोलकर निम्को निकाली और चंद बिस्किट्स भी एक प्लेट में रख दिए। अपनी दानिस्त में उसने आजिर के दोस्त की खातिर का मुनासिब बंदोबस्त कर दिया था। आजिर चाय लेने आया तो चाय के साथ तवाज़ो का सामान देखकर कुछ हैरान रह गया। घर में सबसे छोटा बच्चा होने की वजह से उसके दोस्तों को कभी भी अहमियत से ना नवाजा गया था। थैंक यू सो मच भाभी, आपने तो इतनी जल्दी एहतमाम कर दिया। वो अज़हद ममनून हुआ, लेकिन जिस वक्त वो ये ट्रे लेकर चेक पोस्ट यानी रुखसाना बेगम के सामने से गुजरा तो उन्होंने उसे फौरन रोक लिया। रुखसाना नाम ही इतना डेंजरस है। ये इतना एहतमाम किस लिए भाई? उन्होंने पूछा। असफंद आया है अम्मी, उसने मिनमिना कर बताया। मुझे भी पता है असफंद आया है, मैंने ये नहीं कहा कि किस लिए। किसके लिए? मैं ये पूछ रही हूँ कि असफंद के लिए इतनी ट्रे सजाने की क्या जरूरत थी? वो कोई पहली बार आया है तुमसे मिलने? अच्छा, आज तो भाभी ने एहतमाम कर दिया, आइंदा उसे चाय पिलाने की गलती भी नहीं करूंगा। आजिर मास की बस बास पुरस से झुंझला गया था। रुखसाना बेगम ने बेटे को तो सिर्फ घूरने पर इक्तफा किया था, लेकिन जब सबीन वहां से गुजरी तो उसे आड़े हाथों लिया। बहू, अब इस घर के तौर तरीके तुम भी सीख लो, हर बात समझाना जरूरी तो नहीं। उनका मूड शदीद ऑफ लगता था। क्या हुआ अम्मी? सबीन वाकई कुछ न समझी, बल्कि बाकायदा घबरा गई थी। आजिर के दोस्त के लिए इतने एहतमाम की क्या जरूरत थी? हम सफेद पोश लोग हैं बीबी, महीने भर का राशन दिनों में नहीं मुका सकते। परसों साजदा भाभी आई, मैंने तुमसे सिर्फ चाय बनाने को कहा, तब तुम ट्रे में अलम गलम सजा कर ले आई। ठीक है, कभी कभी किसी खास मेहमान की भरपूर खातिर मदारत भी करनी पड़ती है, लेकिन बंदा ये तो देख ले कि आने वाला मेहमान इतना खास है भी या नहीं। वो बिगड़े मूड के साथ बोली थी। आइंदा एहतियात करूंगी अम्मी, वो मिनमिनाकर यही कह सकी। इतने में फरहीन भी आ निकली थी। और ये हमारी बड़ी बहू हैं, तुम तो चलो नहीं हो, घर के तौर तरीकों से इतनी वाकफियत नहीं। इनका फर्ज है या नहीं कि किसी मामले में तुम्हारी रहनुमाई कर दे, लेकिन जब भी कोई मेहमान आता है, अगर इनके कानों में आवाज़ पड़ जाए, अव्वल तो अपने कमरे से बाहर कदम रंबा नहीं फरमाती, और बाहर आ जाए तो मेहमान के साथ चिपक कर बैठ जाती हैं। मेहमान की खातिर तो जैसे कोई पड़ोस से आकर करेगा। उन्होंने इस बार फरहीन को भी आड़े हाथों लिया। सबीन को तो इस घर में आए जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए अम्मी। पहले मेहमानदारी कौन भुगताता था? मैं ही ना। अब बच्चे ही इतना आजिज किए रखते हैं। अब इस छोटे को देखिए, मैं शामिर को होमवर्क करवा रही हूँ और ये उसकी किताबें कापियां फाड़ने के दर पे है। फरहीन भाभी ने अपनी गोद में चढ़े शाजर को घूरते हुए बताया था। इसकी शरारतें बहुत बढ़ गई हैं, इधर दो इसे, मैं इसके कान खींचूं। रुखसाना बेगम ने मुस्कुराते हुए पोते को अपनी गोद में लिया। दादी का लाडला दादी के पास आकर खिलखिलाने लगा था। फरहीन भाभी मुस्कुराते हुए पलट गई। सबीन भी मंजर में खुद को गैर जरूरी जानकर चली गई। ये नहीं था कि रुखसाना बेगम सिर्फ सबीन के कामों पर ही नुक्ताचीनी करती थी। बख्शती वो फरहीन भाभी को भी नहीं ना थी, लेकिन फरहीन भाभी चिकना घड़ा थी, या हो सकता है शादी के इतने बरस गुजरने के बाद वो ढिठाई की हद तक पुरएतमाद हो गई थी। सास की खफगी को कभी खातिर में ना लाती। रुखसाना बेगम का फौरी ध्यान बटाने के लिए उनके पास शामिर और शाजिर भी थे। असल मसला सबीन का होता, वो इस घर में नहीं थी, घर के तौर तरीकों से नाआशना। रुखसाना बेगम की कंजूस फितरत का अंदाजा होने के बावजूद वो कोई ना कोई गलती कर बैठती थी। शो में किस्मत इसी शाम को रुखसाना बेगम की एक और वाकिफकार खातून मिलने आ गई। बातों से अंदाजा हुआ कि वो पहले पड़ोस में बसती थी और रुखसाना बेगम से उनका खौफ बहनापा था। अब दूसरे इलाके में ज़ाती घर लेकर वहां रिहाइश इख्तियार कर ली थी। शहरयार की शादी में भी तुम नहीं आई फरीदा, मैंने तुम्हारी कितनी राह देखी। रुखसाना बेगम सहेली से शिकवा कर रही थी। बस क्या बताऊं, महविश का बच्चा होने वाला था। 2 महीने उसके पास पिंडी रहकर आई हूँ। तुम तो जानती हो उसका केस कितना पेचीदा होता है। खैर से अल्लाह ने बेटे से नवाजा।
अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बेटा हुआ है महविश के। रुखसाना बेगम ने उनकी बात काटते हुए खुशी का इजहार किया, फिर सबीन को देखा। बहू, चाय वाय का बंदोबस्त करो भाई, इतने अरसे बाद आई हैं तुम्हारी फरीदा खाला। उन्होंने सबीन को मुखातिब किया। वो जी अम्मी कहकर किचन में चली आई। इस वक्त फरहीन भाभी भी मौजूद ना थी। वो समरा के साथ बच्चों को लेकर करीबी पार्क गई थी। सबीन की समझ में ना आ रहा था कि मेहमान हातून की खातिर का क्या बंदोबस्त करे। कुछ समझ में ना आया तो उसने शहरियार को फोन मिला लिया। वो ऑफिस से वापस आ रहा था। सबीन का सवाल सुन के हंस पड़ा। क्या मतलब है भाई कि फरीदा खाला आई है तो उनकी कैसी खातिर मदारत की जाए? जो मैंने पूछा है वही मतलब है। जल्दी से जवाब दें कि ये आम सी मेहमान है, हास या फिर हासुल हास। उसने झुंझलाकर फिर सवाल पूछा। ओके ओके, बताता हूँ भाई। फरीदा हाला अम्मी की पक्की सहेली हैं। उनकी अच्छी सी खातिर करो। चाय के साथ बिस्किट निम्को रख देना। फ्रूट केक मौजूद हो तो वो भी रख दो। और हाँ, फ्रिज में कल के कुछ शामी कबाब भी तो बचे होंगे, उन्हें गर्म कर दो। तौबा है भाई, मुझे उन 4 बचे हुए शामी कबाब का आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। उसने अपनी झुंझलाहट शहरयार पर ही उतार दी। अच्छा सुनो, तो आजिर घर पर हो तो उसे समोसे वगैरह मंगवा लो। शहरयार कुछ कुछ उसका मसला समझ गया था। सबीन ने ओके कहकर फोन बंद कर दिया। शुक्र है आजिर घर पर ही था। सबीन ने उससे समोसे और चिकन रोल मंगवा लिए थे। फरीदा हाला ने जाते समय उसे खूब दुआओं दुआओं से भी नवाजा था और 1000 रुपए भी उसकी मुट्ठी में थमा दिए थे। सबीन ने शुक्र किया कि रुखसाना बेगम का मूड भी खासा खुशगवार था। लेकिन रात को वो आजिर के दोस्त की तवाज़ो का किस्सा सुनाने के बाद शहरयार से पूछ बैठी। प्लीज शहरयार, आप मुझे अपने घर आने वाले मेहमानों के मकाम और मर्तबे से आगाह कर दें। मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। शहरयार के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। खैर, ये तो कोई तब परेशान कुन मसला नहीं है। मैं फिर भी बताए देता हूँ। पड़ोस से नसरीन आंटी आए तो उनसे चाय का पूछने तक की जरूरत नहीं कि वो अक्सर एक दिन में 3 चक्कर भी लगा लेती हैं। मिर्जा साहब की बेगम आए तो चाय का पूछ लो। वो मना कर दे तो इसरार मत करो। ना मना करें तो सिर्फ चाय बना लो। शगुफ्ता मुमानी आए तो बसदे इसरार चाय पिलाओ। साथ खातिर के कुछ और आइटम्स भी हों। नुदरत खाला के आने पर भी पुरतकल्लुफ चाय का एहतमाम करो। और ज़ाहिदा मामी आए तो चाय पर एहतमाम के साथ चुपचाप खाने की तैयारी भी शुरू करो कि अम्मी उन्हें ज़रूर खाने पर रोकेंगी और वो अक्सर रुक भी जाती हैं। शहरयार ने उसे तफसीलन आगाह किया। मैं तो सब कुछ गिटमिट कर दूंगी, आप प्लीज बोलते जाएं, मैं नोट कर लेती हूँ। सवीन के कहने पर शहरयार बाकायदा सर पकड़ कर बैठ गया। फॉर गॉड सेक सवीन, छोटी छोटी बातों की इतनी टेंशन मत लिया करो, रिलैक्स रहने की कोशिश करो। आप मर्द हैं शहरयार, ससुराल जाते हैं तो वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है। बहुओं को ससुराल में अलर्ट रहना पड़ता है। वो जताए बगैर रह ना पाई। माना हम मर्दों को ससुराल की कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन यार जिस जगह हम नौकरी करते हैं वो किसी ससुराल से कम नहीं। ऑफिस में बॉस लड़कियों के साथ से ज्यादा टफ टाइम देता है। मैं तुम्हें अपनी मिसाल देता हूँ। मैं अपना हर काम बहुत दिलचमई और नेक नीयति से करता हूँ। फिर भी जब कभी बॉस किसी और पर आया गुस्सा किसी दूसरे पर निकालने के मूड में हो तो मुझे भी बिलावजह बॉस की कड़वी कुसीली बात सुननी पड़ जाती है। 1 मिनट 2 मिनट के लिए मेरा भी दिमाग घूमता है, लेकिन फिर ये सोचकर खुद को रिलैक्स करता हूँ कि ये सब रूटीन की कार्रवाई है। बिलावजह दिमाग पर सवार करने का फायदा? दफ्तर में मुलाजिम और ससुराल में बहू को थोड़ा सा जीदार और थोड़ा सा ढीठ होना पड़ता है यार। और मैं मानता हूँ कि तुम बहुत हसास तबीयत की मालिक हो, छोटी छोटी बातों को भी महसूस करती हो। मैं अपने घर वालों की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन ससुराल इससे भी औखे होते हैं। लड़कियों को पता नहीं क्या कुछ फेस करना पड़ता है। तुम चंद फिक्रों की ताब ही नहीं ला पाती। मैं बार बार समझाता हूँ कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दिया करो। बिला वजह की टेंशन मत लिया करो। शहरयार ने लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। उसकी बातें गलत ना थी। सबीन खामोशी से सुनती रही। आइंदा कोशिश करूंगी, सबीन ने फर्माबरदारी से तस्लीम कर लिया। शहरयार ने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया था। समरा की सालगिरह आने वाली थी। शहरयार उसे सेल फोन गिफ्ट करना चाह रहा था। उसे सबीन की भी राय चाहिए। क्या ख्याल है, छोटी को मोबाइल का सरप्राइज दे दूं? कितने अरसे से नए मोबाइल की जिद कर रही है। हाँ तो ले देना बेचारी को, इतने दिनों से उसका मोबाइल खराब हुआ पड़ा है। कितनी बार ठीक करवा लिया मगर ठीक नहीं हो पाता। घर वाला लैपटॉप पहले ही खराब पड़ा है। उसे अपनी पढ़ाई के लिए नेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेचारी कभी आजिर का मोबाइल मांगती है, कभी मेरा तो कभी आपका। सवीन ने फौरन शहरयार की तजवीज़ की हमायत की थी। मैं उसे इतना महंगा गिफ्ट दूंगा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? शहरयार उसे जांचना चाह रहा था। मैं आपको ऐसी लगती हूँ? सबीन ने खफगी से उसे देखा। खैर लगती तो तुम मुझे बहुत प्यारी हो, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। शहरयार ने उसे हंस कर देखा। समरा आपकी छोटी बहन है शहरयार, वो आपसे फरमाइश नहीं करेगी तो किससे करेगी?
शादी शुदा होने का ये मतलब नहीं कि आपके घर वालों का आप पर से हक खत्म हो गया। मुझे अच्छा लगता है जब आप समरा की छोटी मोटी फरमाइशें पूरी करते हैं। आजिर बेचारे को अम्मी के अलावा खुद से भी पॉकेट मनी देते हैं। अपने शरारती भतीजों को चीजें दिलवा कर लाते हैं। मुझे उनमें से कुछ भी बुरा नहीं लगता। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि मैं शुक्र मनाती हूँ कि आप अपनी अम्मी की तरह कंजूस नहीं हैं। सभी ने भी हंसते हुए उसे मुखातिब किया। जब शहरयार उसकी हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश बिना उसके कहे पूरी करने की कोशिश में रहता रहता है, तो वो भला उसे उसके घर वालों पर पैसा खर्च करने से क्यों रोकती? तुम बहुत अच्छी हो सबीन, उसने बीवी को मोहब्बत से देखा। क्या ये आई लव यू का तर्जुमा है? वो शरीर हुई। ये आई लव यू 2, 3, 4 सब का तर्जुमा है। शहरयार ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब किया। वो महजूब सी होकर मुस्कुरा दी थी। आरिफा बच्चों के ससुराल में कुरान ख़वानी की महफ़िल मुनक्किद हो रही थी। बच्चों की सास और रुखसाना बेगम वैसे तो देवरानी जेठानी थीं, लेकिन ताल्लुकात इतने मिसाली ना थे। किसी ख़ास मौके त्योहार पर ही एक दूसरे के यहाँ जाना होता। सबीन भी शादी की दावत के बाद आज उनके यहाँ जा रही थी। कुरान ख़वानी के बाद रुखसाना बेगम और फ़रहीन तो दूसरी रिश्तेदार ख़वातीन के साथ गपशप लगाने लगी। वो भांजिए भांजियों के साथ उनके बेडरूम में आ गई। आरिफा बच्चों अभी काम निपटा रही थी। जरा देर की फरागत मिली तो वो भी वहीं आ गई। बाहर सब औरतों में बैठकर रुखसाना चची तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही हैं। आरिफा बच्चों ने मुस्कुराकर आगाह किया। वाकई? वो हैरान हुई। हाँ तो थोड़ी बोल रही हूँ, लेकिन ससुराल वालों की तारीफ पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। आज तारीफ कर रहे हैं तो अगले ही दिन किसी बात पर तनकीद या बुराई कर रहे होंगे। शाबाशी का मेडल पहनाने के साथ ही उतार लेते हैं ये लोग। बच्चों ने तो गोया ससुरालियात में पीएचडी कर रखी थी। जानती हूँ बच्चों, वो उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। बच्चों का कहा दुरुस्त साबित हुआ। 2 रोज बाद की बात थी। रुखसाना बेगम के पास पड़ोस वाली नसरीन आंटी आई बैठी थी। वो दबी दबी आवाज में उनके सामने सबीन की बदसलीकगी का तज़किरा कर रही थी। किस तरह एक दिन उससे दूध उबाल दिया और कैसे उसके हाथ से बर्तन फिसल फिसल कर टूटते हैं। सबीन ने अब यह वतीरा बना लिया था कि वो अपने बारे में किसी की भी बात कान लगाकर न सुनती थी। खामखा जी जलाने का फायदा। और कभी इत्तेफाक से उसकी जात के मुतल्लिक कोई तबसरा उसके कान में पड़ भी जाता तो वो इस बात को ज्यादा देर दिमाग पर सवार न होने देती। काम मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। और जब से उसे ये आदत अपनाई, जिंदगी खुद बहुत पुरसकून होती जा रही थी। वो 2 दिन के लिए अम्मी के यहाँ रहने आई थी। अब्बू छोटी फूफो के पास कराची गए थे। अम्मी की तन्हाई का ख्याल करके वो उनके पास रहने आ गई। छोटी फूफो बहुत परेशान थी। अलीज़े आपी के ससुराल वालों ने उनसे बच्चे छीनकर उन्हें घर से निकाल दिया था। इकलौती बेटी की टेंशन लेकर फूफो की तबीयत बिगड़ गई थी। अबू बहन को तसल्ली दिलासा देने के ही कराची गए थे। अलीज़े आपी के मुतल्लिक सोच सोच कर सबीन का दिल भी बहुत खराब हो रहा था। उसने बहुत दिल से अल्लाह के हजूर अलीज़े आपी की खुशियों और पुरसकून जिंदगी की दुआ की थी। दिमाग में शहरयार की बातें भी गूंजती। बाज ससुराल वाले वाकई बहुत जालिम होते हैं। अल्लाह हर लड़की को ऐसे ससुरालियों के शर से महफूज रखे। आमीन। बाकी छोटी मोटी बातें तो हर घर में ही होती हैं। सबीन ने तहैया कर लिया था कि अब वो मामूली बातों पर जूद रंज होने के बजाय उन्हें नजरअंदाज करने की पॉलिसी बनाएगी। अल्लाह ने उसे शहरयार जैसा जीवन साथी दिया था। अब उसने शिकवे शिकवे की बजाय शुक्र को अपना शुआर बनाना था। शहरयार देख रहा था कि वो सुबह से फिरकी की तरह घूम घूम कर घर के काम निपटा रही थी। मासी ने छुट्टी कर ली थी। सबीन को सफाई करनी पड़ी। फरहीन भाभी के मैके में कोई तकरीब थी। वो कल शाम से मैके गई हुई थी। किचन की जिम्मेदारी के साथ छोटे बड़े तमाम काम उसे निपटाने पड़े थे। आज इत्तेफाक से लाइट भी ना गई तो सबीन ने मौके से फायदा उठाते हुए वॉशिंग मशीन भी लगा ली। वरना कई दिनों से बिजली की आग पचोली ने सबको जिज कर रखा था। शहरयार ने मौसमी फ्लू की वजह से आज ऑफिस से छुट्टी की थी, लेकिन सबीन को उसके पास बैठने का मौका ही न मिल रहा था। शाम को वो धुले कपड़े उतारने छत पर गई तो शहरयार भी पीछे चला आया। मौसम अच्छा हो रहा है ना, कुछ देर यहीं बैठते हैं। अभी बिल्कुल फुर्सत नहीं शहरयार, अभी मुझे इन कपड़ों की तय लगानी है। अम्मी अबू का एक एक सूट प्रेस करके रखना है। फिर शाम के खाने की तैयारी, और आप भी कमरे में जाकर लेटें, अभी छींकें आना शुरू हो जाएंगी। वो शहरयार को मुफ्त मशवरे से नवाज कर कपड़े लेकर फौरन नीचे चली गई। शहरयार भी ठंडा सांस भर कर नीचे चला आया। रात के खाने के बाद सबीन ने सबको चाय बनाकर दी। शहरयार का ख्याल था कि वो अब कमरे का रुख करेगी, लेकिन समरा ने आदत के मुताबिक आज भी अपनी वाहिद ड्यूटी यानी खाने के बर्तन धोने से जान छुड़ाना चाहिए। वो टीवी के सामने किताब खोलकर बैठ गई। ड्रामा देखते हुए पढ़ने का फन भी सिर्फ उसे आता था। सबीन को बर्तन भी धोने पड़ रहे थे। शहरयार की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। सबीन, कहाँ हो तुम? कितनी देर पहले तुमसे कहा था कि आकर मेरा सर दबा दो। तुम्हें सर दबाने की फुर्सत मिले तब ना। वो कमरे से बाहर आकर धाड़ा। एक लम्हे को सब खामोश हो गए।
भाभी तो शायद किचन में है, आजिर ने जवाब दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप किचन में क्या कर रही है? सबने खाना खा लिया, चाय पी ली। मोहतरमा को फिक्र ही नहीं कि शोहर की तबीयत खराब है। उससे सर दबाने का कहा हुआ है, आलतू फालतू के सब काम कर लेंगी। जब मेरी जरा सी खिदमत करनी पड़ जाए तो रफू चक्कर हो जाती हैं। भाभी बर्तन धो रही हैं, भाई फारिग होकर अभी आ जाएंगी। इस बार भी आजिर ही बोला था। पता नहीं भाभी बर्तन धोने क्यों खड़ी हो जाती हैं। मैं उनसे कहती भी हूँ कि ड्रामा खत्म हो जाए, बर्तन मैं खुद धो लूंगी। भाई मैं अभी भेजती हूँ भाभी को। समरा फौरन उठी थी। शहरियार की बात मत टाला करो बहू, गुस्से में ये बिल्कुल अपने अब्बू पर गया है। सबीन आई तो रुखसाना बेगम ने उसे नसीहत की। सबीन के कानों तक शहरियार की ऊंची आवाज पहुंच चुकी थी। उसने खुद पहली बार शहरियार का इतना गुस्सेला लहजा सुना था। उसके गुस्से से खाइफ होती वो कमरे में गई थी। कोताही वाकई उसकी थी। आज शहरियार की तबीयत खराब थी, उसे उसका ख्याल रखना चाहिए था। मैं बस आ ही रही थी शहरयार, सॉरी कुछ देर हो गई। वो शर्मिंदा होकर बोली। शहरयार ने उसे तीखे तेवरों से देखा। बगैर किसी कसूर के वो कैसे शर्मिंदा शर्मिंदा सी लग रही थी। इंसान और मशीन में कुछ फर्क होना चाहिए सबीन। अगर तुम खुद अपना ख्याल नहीं करोगी तो दूसरा भी नहीं करेगा। कोई काम समरा के लिए भी छोड़ दिया करो। इतनी एफिशिएंसी झाड़ने की क्या जरूरत है? हर काम आगे बढ़ बढ़ कर करने से तुम्हें इजाफी नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस घर को अपना घर समझते हुए अपने फराइज दिल लगाकर अदा करो, लेकिन दूसरों को भी उनका फर्ज पूरा करने का मौका दो। वरना सब तुम्हारे बढ़ चढ़कर काम करने की आदत से नाजायज फायदा उठाएंगे और फिर तुम किसी काम से हाथ खींचना भी चाहोगी तो खींच नहीं पाओगी। शहरयार उसे संजीदगी भरे लहजे में समझा रहा था। कहाँ आपके सर में दर्द हो रहा था? अब आपने इतना लंबा लेक्चर दे डाला। बोल बोल कर सर में दर्द बढ़ नहीं जाएगा? उसने मोहब्बत भरी निगाह शहरयार पर डाली। ईशा की नमाज पढ़ने गया था तो तुम्हारे लिए जिगर बर्गर छुपा कर लाया था। मुझे पता है आलू गोभी से तुम बराए नाम रोटी खाती हो। तुमने आने में इतनी देर कर दी, बर्गर ठंडा हो गया। शहरयार ने प्लेट में बर्गर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। एक बर्गर समरा के लिए भी ले आते, जिगर तो उसे भी बहुत पसंद है, फिर छुपा कर लाने की भी जरूरत न पड़ती। सबीन ने राय का इजहार किया। समरा अपनी हर फरमाइश डंके की चोट पर पूरी करवाती है। फिर उसकी फरमाइशें पूरी करने के लिए अब्बू हैं, मैं हूँ, नबील भाई और आजिर हैं। तुम्हारी फरमाइशें मेरे अलावा और कौन पूरी करेगा? इसलिए दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो और ये बर्गर खाओ। तुम बहुत कमजोर हो गई हो। अब तुम्हारी डाइट का मैं खुद ख्याल रखूंगा। वैसे शहरयार, अगर अल्लाह ने हमें बेटे से नवाजा और शादी के बाद हमारा बेटा अपनी बीवी के लिए छुप छुप कर चीजें लाएगा तो हमें इल्म होने पर कैसा लगेगा? सबीन के जहन में वैसे ही एक सोच आई तो मुस्कुराते हुए पूछ बैठी। अगर तुम बहू के खाने पीने पर नजर रखने वाली नुक्ताचीन किस्म की सास बनी तो मैं अपने बेटे को खुद तरीके बताऊंगा कैसे बीवी के लिए कोट जैकेट के जेबों और लैपटॉप के बैग में चीजें छुपा कर लाते हैं। शहरयार बोला। वो हंस पड़ी। यार यही तो शादीशुदा जिंदगी के एडवेंचर हैं, और यकीन करो हम जो वक्त अब गुजार रहे हैं ये हमारी जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर है। वक्त अपनी चाल चलेगा। आने वाले बरसों में हम आज की निस्बत ज़्यादा आज़ाद और खुद मुख्तार ज़िंदगी जिएँगे। तुम्हें इस घर में उठने बैठने, सोने जागने, खाने पीने समेत हर चीज़ की आज़ादी होगी। हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर ये घर तुम्हें ससुराल नहीं बल्कि अपना घर लगने लगेगा। शहरयार ने मुस्तकबिल की मंजर कशी की थी। मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन बंदी गर्दानती हूँ शहरयार, जो मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। मेरी अल्लाह से दुआ है कि हर सबीन को शहरयार जैसे शोहर मिले, फिर वो ससुराल के सर्द गर्म को भी बआसानी झेल लेगी। बेशक। सबीन ने लुटाती निगाहों से शरीके सफर को देखा। बड़ी नामुमकिन सी दुआ मांग ली तुमने। अब हर सबीन को तो शहरयार नहीं मिल सकता ना। किसी सबीन के हिस्से में अब्दुल गफूर आएगा, कोई मोहम्मद साजिद के पले बंधेगी, कोई असगर अली के निकाह में आएगी। शहरयार की जिंदगी में तो ज्यादा से ज्यादा 3 सबीनें और आ सकती हैं। शहरयार मुस्कुराहट दबाकर बोला था। सबीन को उसकी बात जरा देर से समझ में आई, मगर जब समझ आई तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे अलावा किसी दूसरी सबीन को तो छोड़िए, दूसरी लड़की पर भी दूसरी निगाह डाली तो मैं तीसरी निगाह डालने का मौका नहीं दूंगी। उसने वार्निंग दी थी। मेरे साथ रहते रहते फिक्रे बनाने भी आगे हैं जनाब को। इसे कहते हैं सोहबत का असर। शहरयार ने शरारत से उसकी नाक दबाई। सबीन ने मुस्कुराकर उसके कंधे से सर टिका लिया। आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं शहरयार। ये तुम आई लव यू का तर्जुमा सुनाने के बजाय सीधा सीधा आई लव यू क्यों नहीं कह देती? वो शरारत के मूड में था। सबीन हंसी और हंसती चली गई। ससुराल में गुजारे एक पुरमुशक्कत दिन का इख्तिताम निहायत खुशगवार था। शहरयार जैसे शख्स का साथ मिलने पर उसका रुआं रुआं अपने रब का शुक्रगुजार था।